My dear students, I welcome you all to this next mind-boggling lecture of fluid mechanics. कैसे हो आप लोग बेटा? I hope all of you are fine and all of you have revised whatever I taught you people in the last lecture. So today we are going to move towards the next properties, that is surface tension and capillarity. That is property number 7 and property number 8. But before starting anything, just tell me in the comment box once, am I audible and visible to you guys? Is everything fine? Can we start? एक बारी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बिकॉज आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम अ न्यू सेंटर, फ्रॉम अ न्यू स्टूडियो. सो जस्ट फॉर अ क्रॉस चेक, just tell me in the comment box, am I audible and visible to you guys? Is everything fine? शुरू करें. Come on. What's the voice issue, Rushit? एक sound is not good. एकदम बढ़िया. Okay. एक बार ही जरा चेक करो, क्या अब वॉइस गूंज रही है? क्या अब वॉइस गूंज रही है? देखो पार्शियल इको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. लेकिन क्या ऐसा है कि तुम्हें बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा? बाकी सब कंट्रोल में है. एवरीथिंग इज फाइन यार, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक तो है. देखो हल्का सा इको हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है. देखो लिटिल बिट इको जो हो रहा है, उससे मेरे ख्याल से ऐसी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. क्या आप जो मैं बोल रहा हूं, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? इज एवरीथिंग फाइन? ठीक है यार, बिल्कुल ठीक है. चलो ठीक है. नो प्रॉब्लम. ओके चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ. चलिए, सो एवरीथिंग इज फाइन नाउ. थोड़ा बहुत इको हो सकता है, उसमें कोई ऐसी ट्रबल वाली बात नहीं है, बट ओके चलो छोड़ो, अब ये सब छोड़ो. मैं तुम लोगों के सामने हूं, खुश हो जाओ. चलो लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग नोन एज सरफेस टेंशन, which is one of the most important properties of fluid mechanics. But before starting anything, बीच में एक दिन का गैप हो गया था, so let us give 2 minutes to revision, because revision is very very important. एक बारी कमेंट बॉक्स. चलिए let us give 2 minutes to revision. So last property हम लोगों ने पढ़ी थी वेपर प्रेशर. Can you tell me वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? What is the definition of vapor pressure? The pressure exerted by the vapor molecules over the surface of the liquid and at saturation condition or at equilibrium condition is known as vapor pressure. But the most important thing is that at a given temperature. That is also very very important.
because temperature has a huge role to play in case of vapor pressure. If you are going to increase the temperature, the vapor absorption capacity of the molecules is going to increase, and hence the vapor pressure is also going to increase. Highly volatile fluids such as petrol and benzene have high vapor pressure, whereas mercury, which is having very strong cohesive bonds, it is having the least vapor pressure. Okay, dear? Yes. What is cavitation? Cavitation is first of all, tell me, it is a high pressure phenomena or low pressure phenomena? It is a bloody low pressure phenomena. जब फ्लूइड के फ्लो का प्रेशर अगर उसके वेपर प्रेशर से नीचे हो जाएगा तो फिर क्या होगा बच्चे? Then there is going to be formation of bubbles are there, and due to formation of bubbles, there is, when these bubbles move to the high pressure region, there is collapsing of these bubbles, and therefore cavitation, wear and tear phenomena and cavitation is going to take place. Wonderful. उसके अलावा हम लोगों ने विस्कोसिटी देखा था. इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इट इज ब्लडी इंटरनल रेजिस्टेंस between adjacent layers. Then what is the Bahubali equation of fluid mechanics? Tau is equal to mu into du by dy, and this is the equation for Newtonian fluids. Newtonian fluids का viscosity constant होता है rate of deformation के साथ. इनको कैसे represent करते हैं? They are represented by a straight line passing through origin having a constant slope. So all this stuff we have also studied in the last lecture. We did some beautiful numericals, and मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने वो न्यूमेरिकल्स कम से कम अपने न्यूमेरिकल रजिस्टर में नोट कर लिए होंगे. चलो बेटा, श्री गणेश करते हैं आज का क्लास का विदाउट एनी डिले. एक बारी बस कमेंट बॉक्स में बता दो, आर यू गाइज अलाइव? शुड वी स्टार्ट? जिंदा हो तुम लोग या निपट गए? आर यू गाइज अलाइव? शुड वी स्टार्ट? यस, चलो. नाउ बेटा बी हाईली अलर्ट, द क्लास इज स्टार्टिंग. अब हम डीप डाउन हम लोग नॉलेज कैप्चर करेंगे, सो बी हाईली अटेंटिव. लेट अस स्टार्ट. सी माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो this is, let us say, property number 7, which is known as surface tension. So this is property number 7, which is known as surface tension, and this is shown by the symbol sigma. The name of the property itself is telling something about the property. देखो, so नाम के अंदर ही एक शब्द लिख रखा है जो कि है टेंशन. टेंशन का मतलब होता है इट इज सम काइंड ऑफ अ पुल और सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेच. देखो बच्चे, एक मैकेनिकल सिविल इंजीनियर की जिंदगी में टेंशन कोई नई चीज नहीं है. टेंशन वी हैव ऑलवेज सीन इट इज सम काइंड ऑफ अ पुल और सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेच. सो अगर कोई सी भी चीज किसी प्रकार का पुलिंग हो रहा है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेचिंग हो रहा है, इस तरह की परिस्थिति को हम लोग टेंशन कहते हैं. परंतु सोचने वाली बात यह है कि ये टेंशन जो है ये टेंशन हम लोगों को मिल कहां पे रहा है?
दिस इज द टेंशन विच इज गोइंग टू बी देयर एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो आपको बिलो द सरफेस ना मिलकर इट इज गोइंग टू बी ओनली अ सरफेस फिनोमेना। वंडरफुल। मैं आज की क्लास की शुरुआत कुछ बेसिक फंडामेंटल डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से शेयर करता हूं। हैव यू सीन अ मॉस्किटो? क्या आप लोगों ने मक्खी या मच्छर ऐसा कुछ देखा अपनी जिंदगी में? यस, वी लिव इन इंडिया, दीज आर नॉर्मल थिंग्स फॉर अस। तो हमने मक्खी या मच्छर को देखा एंड ब्यूटिफुली मक्खी या मच्छर आपके घर में वो जो पानी का कूलर होता है ना, जिसके गर्मियों में वी यूज दैट वाटर कूलर ना, तो वाटर कूलर में वो पानी आपने भर रखा है अप टू अ सर्टेन लेवल एंड मॉस्किटो मक्खी या मच्छर मस्त वाटर कूलर की तरफ के पानी की तरफ आ रहा है, ब्यूटिफुली पानी की तरफ आ रहा है। आप ये नजारा देखते हो और सोचते हो कि भाई ये खत्म, इसका कैरियर आज खत्म, इसका समापन है आज। लेकिन तो यू बिकम हैप्पी कि आज तो लाइव सुसाइड देखने को मिलेगा मेरे को। लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध असलियत में होता क्या है कि मॉस्किटो ब्यूटिफुली आता है एंड ब्यूटिफुली पानी की सतह पर लैंड करता है, और इस तरीके से लैंड करता है जैसे कि पानी के सतह पर ना लैंड करके उसने किसी सॉलिड सरफेस पे लैंड किया है। ससुरा इस तरीके से लैंड करता है। कुछ तो गड़बड़ है दया, बिकॉज अगर हम पानी में स्विमिंग पूल में मान लीजिए ऊपर से अगर आप कूद जाए नीचे तो भाई आपका बचना नामुमकिन है। लेकिन ये मॉस्किटो जो है ये ब्यूटिफुली पानी के सतह पे लैंड करता है। इसका मतलब पानी के सतह पर कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी थी जिसने उस मॉस्किटो के वजन को क्या कर लिया? बियर कर लिया मॉस्किटो के वजन का। बिल्कुल सही बात है, बियर तो कर लिया वजन को। तो यही प्रॉपर्टी का नाम है सरफेस टेंशन। फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, आप अगर मक्खी या मच्छर छोड़ दीजिए और मक्खी या मच्छर की जगह आप लोग क्या करिए, एक घास का तिनका ले लीजिए। तो घास के तिनके को आप पानी की सतह के ऊपर रखिए और ब्यूटीफुली आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप उसे जूम इन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि घास की सतह पर जो आपने तिनका रखा है वो ब्यूटीफुली पानी की सतह के ऊपर ही है। अच्छा, कुछ बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होगा कि सर क्या इसमें बायंसी का कुछ रोल है क्या? नहीं मेरे लाल, यहां पर बायंसी का कोई रोल नहीं है। अगर आप मॉस्किटो को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप जूम इन करके देखोगे तो आप पाओगे कि मॉस्किटो के शरीर का कोई भी हिस्सा पानी की सतह के नीचे नहीं है। मॉस्किटो के शरीर का कोई भी हिस्सा पानी की सतह के नीचे नहीं है। और आर्किमिडीज साहब, आगे चल के मैं ही आपको पढ़ाऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज साहब ने कहा था कि शरीर का कोई ना कोई हिस्सा, मतलब देयर शुड बी सम वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एंड देन ओनली द बायंसी फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ओवर द बॉडी। लेकिन ये जो मक्खी या मच्छर है इसका बॉडी का आप अगर एकदम हाई डेफिनेशन कैमरा चाहिए बेटा इन सब चीजों के लिए, तो हाई डेफिनेशन कैमरा से अगर जूम इन करके देखोगे ना आप तो आपको पता चलेगा कि मॉस्किटो, जैसे ये लिक्विड का सरफेस है, तो ये जो लिक्विड का सरफेस है तो मॉस्किटो के जो लेग्स हैं वो पानी की सतह के नीचे ना होके पानी की सतह के बिल्कुल ऊपर ही है। तो यहां पर बायंसी का तो कोई रोल नहीं है, सरफेस ने ही मॉस्किटो के लोड को क्या कर लिया? बियर कर लिया। सरफेस ने ही मॉस्किटो के लोड को क्या कर लिया? बियर कर लिया। एक्सेलेंट बच्चों। इंपॉर्टेंट शब्द यहां पर यह है कि कुछ बच्चे मेरे ये दो एग्जाम्पल सुन के ना एक्साइटेड हो जाएंगे कि अरे वाह हम लोग भी कूद जाएंगे और पानी का सरफेस हमें डूबने नहीं देगा। बेटा तुम निपट जाओगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये केवल और केवल
छोटे मोटे लोड्स को ही बियर कर सकती है. इट कैन ओनली बियर स्मॉल लोड्स. इट कैन ओनली बियर स्मॉल लोड्स. वेरी गुड. बट आप कोई स्मॉल लोड्स तो हो नहीं, आप कोई मक्खी या मच्छर तो हो नहीं भाई, तो तुम्हारा डूबना निश्चित है. कोई नहीं रोक सकता इस चीज को. वंडरफुल. तो विज्ञान में सबसे पहले शुरुआत होती है क्या हो रहा है. विज्ञान की हमेशा शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है ना बच्चे, कि क्या हो रहा है. अगली चीज विज्ञान के अंदर होती है क्यों हो रहा है. तो पिछले 10 मिनट में 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने ये देख लिया कि भाई क्या हो रहा है. तो कुछ ना कुछ तो है लिक्विड के सरफेस पे जो कि छोटे मोटे लोड्स को बियर करने की क्षमता रखता है. लेकिन अब हमें देखना है क्यों हो रहा है. क्यों हो रहा है. आइए. सो अगर मुझे, अच्छा एक और जरूरी बात, अगर मुझे ये देखना है कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो ऐसा करते हैं बोर्ड पे कुछ लिक्विड बना लेते हैं. ऐसा करते हैं बोर्ड पे कुछ लिक्विड बना लेते हैं. बोर्ड पे कुछ लिक्विड बना लेते हैं. लिक्विड बना लेते हैं. अच्छा एक और जरूरी बात बेटा, केवल और केवल लिक्विड्स आर द वंस which are having the ability to form a surface. So for example, अच्छा जरूरी थोड़ी ना है कि ये प्रॉपर्टी केवल पानी में ही मिल रही है. ये प्रॉपर्टी किसी भी उसमें मिल सकती है भाई. यू टेक एनी लिक्विड. सो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दैट आई एम टेकिंग एनी लिक्विड. आई एम टेकिंग एनी लिक्विड. एक्सेलेंट बच्चों. And you know, if I am taking any liquid, above this, let us say there is air is there, and this is my free surface. So I am showing this symbol. Why I am showing this symbol? I am showing this symbol because यहां पर ये जो सरफेस टेंशन नाम की प्रॉपर्टी है, ये ज्यादा डोमिनेट जो करती है ना, वो स्टैटिक फ्लूइड्स में डोमिनेट करती है. कहां डोमिनेट करती है? स्टैटिक फ्लूइड्स में ये प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेट करती है. तो इसीलिए हमने ये दिखाया. अभी तुम ही लोग बताओ इधर देखो. एयर लिक्विड इंटरफेस. बोलो 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 अपने घरों पे बोलो. एयर लिक्विड इंटरफेस. एयर लिक्विड इंटरफेस. वंडरफुल. तो ये जो इंटरफेस यहां पर फॉर्म होगा, यही तो मेरा सरफेस है. और ये जो इंटरफेस फॉर्म हो रहा है, यहीं पर एक्ट करेगा सरफेस टेंशन, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है. एक और जरूरी बात, माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरफेस या सरफेस फॉर्म होने के लिए, इंटरफेस या सरफेस फॉर्म होने के लिए लिक्विड का प्रेजेंट होना जरूरी है. लिक्विड्स का प्रेजेंट होना जरूरी है. बिकॉज लिक्विड्स आर द वंस व्हिच आर हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म अ सरफेस. गैसेस डोंट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ सरफेस. Gases have the ability to expand without any limits. For example, मान लो मेरे पास एक बॉक्स है. उस बॉक्स के अंदर मैंने ऑक्सीजन डाल रखा है और लेटेस्ट से नाइट्रोजन डाल रखा है. तो आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि यहां पर ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये क्या कोई एक सरफेस फॉर्म करेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज द गैसेस डोंट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ सरफेस. मेरे लाल, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे. बट अगर मैं, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आई हैव टेकन सम वाटर. उस कंटेनर के अंदर आई हैव टेकन सम वाटर. सो लेट अस से दिस इज द वाटर इज देयर एंड अबव दिस देयर इज एयर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो इंटरफेस फॉर्म हो रहा है, यहां पर ये जो इंटरफेस फॉर्म हो रहा है, ये एयर के कारण थोड़ी ना फॉर्म हो रहा है. ये इंटरफेस केवल और केवल किसके कारण फॉर्म हो रहा है? वाटर के कारण फॉर्म हो रहा है. सो यहां से हमें आज एक और चीज सीखने को मिलती है. गैसेस डोंट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म अ सरफेस. ओनली द लिक्विड्स आर हैविंग द एबिलिटी टू फॉर्म अ सरफेस. एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. नाउ लुक हियर ऑन द बोर्ड, माय डियर स्टूडेंट्स. सो इफ आई वांट टू एनालाइज दैट व्हाट इज हैपनिंग, what I should do is, first of all, let me take a molecule which is below the liquid surface. एक हम मॉलिक्यूल लेंगे below the liquid surface, एक हम मॉलिक्यूल लेंगे on the liquid surface. ठीक है?
और फिर हम दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स सी बात है कि दोनों मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ, उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस में कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ही होगा। इसी कारणवश तो ये प्रॉपर्टी फॉर्म हो रहा है, इसी कारणवश तो ये प्रॉपर्टी फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं विच इज दिस A, and this is the molecule which is present in bulk. इसे कहते हैं molecule in bulk. So let me write here, this is the molecule in bulk. This is the molecule in bulk. Very good. Molecule in bulk मतलब भाई ये कोई सरफेस के नीचे एक मॉलिक्यूल लिया which is surrounded by various other molecules of same nature. From all the other sides, 360 degree angle, molecules of same nature it is surrounded by. Now look here on the board. नाउ दिस मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल यहां पर नीचे है, मान लो ये मेरी मुट्ठी जो है ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मेरी मुट्ठी जो है ये वो मॉलिक्यूल है। तो क्या ये मॉलिक्यूल जो है इट विल बी सराउंडेड बाय वेरियस अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर। अच्छा, सेम नेचर और डिफरेंट नेचर? सेम नेचर, फ्रॉम ऑल द साइड्स 360 degree angle, equally distributed from all the sides. That's why it is molecule in bulk ना। तो this molecule, will it experience cohesive forces from all the sides 360 degree angle? The answer is yes. So this is the reason why this molecule will be under the action of cohesive forces from all the sides, but the important thing is equally distributed from all the sides. Very good. So therefore, my dear students, for example, if I talk about this molecule, then over this molecule there are going to be cohesive forces which are going to act over this molecule, but that is going to be from all the sides 360 degree angle, equally distributed. अब सुनो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को दो भागों में कट करता हूं, लेट अस से अगर मैं इस दो मॉलिक्यूल को दो भागों में कट करता हूं, तो बेटा कट करने के कारण एक अपर मॉलिक्यूल, एक लोअर अपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, लोअर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अपर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल पे लगने वाला नेट रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स और लोअर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल पे लगने वाला नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। And hence everything will get cancelled out and the net resultant force acting over this molecule is going to be zero. So in other language beta, can I say that this molecule which is present here, this molecule is in equilibrium. This molecule is in equilibrium. Or in other language, I can say that this molecule is under the action of balanced cohesive force. Excellent बच्चों, ये हमने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया विच इज बिलो द सरफेस। अब हम लोग एक दूसरा मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे विच इज ऑन द सरफेस। सो लेट अस टेक अ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस बेटा जी। सो दिस इज, लेट अस से द मॉलिक्यूल इज बी विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सर ये वाला जो मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सर इस पे ऊपर की तरफ से भी तो कुछ फोर्सेस लगेंगे, अडेसिव फोर्सेस, क्योंकि आपको पता है कि धरती के हर दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो अडेसिव फोर्सेस, सर ऊपर की तरफ अडेसिव फोर्सेस तो लगेंगे ही लगेंगे। द आंसर इज यस, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन जरा मेरे आज की क्लास में, मेरे बेटा शुरू हो रहा है असली चीजें, आज की क्लास में मेरे हाथों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे फिंगर्स को देखो तो ये है वो मॉलिक्यूल ए विच इज द मॉलिक्यूल बी विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो ये जो मॉलिक्यूल बी है, दिस इज, इस पे ऊपर की तरफ से लगने वाला अडेसिव फोर्स
है तो सही, होगा तो सही, लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल यहां पर है, दिस इज एक्चुअली सराउंडेड बाय सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, समथिंग लाइक दिस। सो जिसके कारण ये वाला जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है, दिस इज एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस लाइक दिस। कम ऑन गाइस, कम ऑन, लुक हियर। सो ये जो मॉलिक्यूल है, इट इज एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस लाइक दिस. And are these forces which it is experience, isn't it some kind of a pulling or stretching? Yes. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सर ऐसे नीचे की तरफ भी तो लगेगा। अरे लगेगा मेरे बच्चे, क्या तकलीफ है उसके अंदर, लगने दो। So this molecule which is B, which is present over the surface, this molecule is going to experience cohesive forces only in the downward direction. And of course there will be some adhesive forces are going to be there, but those adhesive forces will be negligible. Now my question to you, Hindi Prime Batch, my question to you is this molecule which is present on the surface, is this under balanced condition or unbalanced condition? This bloody molecule is under unbalanced condition. This molecule is under unbalanced condition. This molecule is under unbalanced condition. Now, as this molecule is under unbalanced condition, hence due to that unbalancedness, this molecule experiences some kind of a pull और some kind of a stretch. अगर हिंदी भाषा में पुलिंग और स्ट्रेचिंग क्या होता है? खिंचाव फील करेगा जी। सो ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, दिस इज गोइंग टू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ अ खिंचाव। ओके, बट मेरा आपसे सवाल है, क्या ये अकेला मॉलिक्यूल है सरफेस पे जो कि खिंचाव फील कर रहा है? जवाब है नहीं। ये बिल्कुल भी अकेला मॉलिक्यूल नहीं है जो कि खिंचाव फील कर रहा है। ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के सरफेस पे जो कि खिंचाव फील कर रहे हैं। ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल है लिक्विड के सरफेस पे जो कि खिंचाव फील कर रहे हैं। सरल शब्दों में हिंदी भाषा में मैं कह सकता हूं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चादर सी बिछी हुई है। सुनो, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक चादर सी बिछी हुई है ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। किसकी चादर बिछी हुई है? स्ट्रेच्ड मॉलिक्यूल्स की चादर बिछी हुई है। स्ट्रेच्ड मॉलिक्यूल की चादर बिछी हुई है ओवर द सरफेस। एक्सीलेंट बच्चों। एंड ये जो स्ट्रेच्ड मॉलिक्यूल की चादर बिछी हुई है, यही एक तरह का इलास्टिक मेम्ब्रेन है। और इसी इलास्टिक मेम्ब्रेन पे अगर आप कुछ भी चीज लाकर रखते हो तो इलास्टिक मेम्ब्रेन की खास बात होती है कि वो, देखो इमेजिन करो एक सरफेस है जो कि खींचा हुआ है, उस खींचे हुए सरफेस पे अगर आप कुछ भी चीज लाकर रखोगे तो क्या तुमने रियल लाइफ में भी देखा है कि वो इलास्टिक मेम्ब्रेन पे अगर मैंने कुछ भी चीज लाकर रखा तो ये ऐसे करके रिबाउंस करने की क्षमता, ऐसे करके रिबाउंस। अरे क्या स्टूडेंट्स हैं यार ये लोग, क्या उसमें रिबाउंस करने की क्षमता होती है? यस। और अगर किसी भी लिक्विड के सतह ने उसको रिबाउंस करवा दिया, गारंटी है कि भाई उसने उसके लोड को क्या कर लिया? बियर कर लिया। उसने उसके लोड को क्या कर लिया? बियर कर लिया। एंड दिस phenomena or this property basically is known as surface tension. This phenomena or this property is known as surface tension. Excellent students of India. Excellent students of India. Now look here on the board, my dear students. कुछ और जरूरी बातें साथियों, आपको पता है सरफेस टेंशन इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी। Surface tension is a binary property. Now what do you mean by binary property? देखो बाइनरी प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि ये वाली प्रॉपर्टी ना
दो लिक्विड के इंटरफेस पे डिपेंड करेगी कि कौन से, देखो लिक्विड का प्रेजेंट होना तो जरूरी है, क्योंकि गैसेस गैसेस मिलके इंटरफेस तो बना नहीं सकते दोस्त, है ना। तो लिक्विड का तो प्रेजेंट होना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो यहीं से एक और सवाल उठता है, क्या लिक्विड लिक्विड का इंटरफेस पे भी सरफेस टेंशन होगा? जवाब है हाँ, ये भी एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मरकरी है नीचे और यहां पर लेटर से पानी है ऊपर की तरफ। तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्या पानी और मरकरी के बीच में एक इंटरफेस डेवलप होगा? 101% बिल्कुल डेवलप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सो अगर 101% यहां पर इंटरफेस डेवलप होगा, तो यहां पर मान लीजिए अगर मैंने मरकरी का कोई मॉलिक्यूल लिया, तो आप जानते हो ना, यहां पर देखो, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ सरफेस टेंशन? ये याद रखना, मेन रीजन ऑफ सरफेस टेंशन इज अनबैलेंसनेस ऑफ फोर्सेस, है ना। सो ड्यू टू और यहां पर भी अगर तुम मरकरी का कोई मॉलिक्यूल लेते हो तो अनबैलेंसनेस ऑफ फोर्सेस तो होगा ही ना। सो देयरफॉर देयर इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर देयर, unbalanced forces are there. And why this is called as binary property? क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना भाई, सरफेस टेंशन का ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म होगा, ये कितने लोड को बियर कर सकता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो सब हम अभी देखेंगे और ज्यादा फील करेंगे चीजों को, ठीक है। लेकिन इसे बाइनरी प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से दो लिक्विड्स या लिक्विड गैस मिलके इंटरफेस का निर्माण कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है हमेशा सरफेस टेंशन कैसे लिखा जाता है? जैसे मान लो आपको पानी और हवा का सरफेस टेंशन लिखना है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम लोग जनरली अपनी कॉलेज लाइफ में क्या बेवकूफी करते हैं, हम लोग लिख देते हैं सिग्मा ऑफ वाटर इज इतना, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ वाटर। गलत है, दिस इज नॉट द वे यू शुड राइट सरफेस टेंशन, दिस इज एग्जैक्टली नॉट द वे यू शुड राइट सरफेस टेंशन। ऑलवेज यू शुड राइट सरफेस टेंशन लाइक दैट एयर water. Yes, you should write like this. You should write like this. Sigma for mercury and water. Sigma for mercury and water. So you should write like this. This is the correct way of writing the value of surface tension. क्योंकि हमेशा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन से दो फ्लूइड्स मिलके इंटरफेस फॉर्म कर रहे हैं। आ जाओ इधर देखो, एक और जरूरी बात, हेंस इट इज नोन एज अ बाइनरी प्रॉपर्टी। अगली जरूरी बात, तापमान के बढ़ाने से सरफेस टेंशन भी घटता है। टेम्परेचर विद इंक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, with increase in temperature the surface tension also decreases. Why? Because बच्चा जानता है the main reason of surface tension is unbalanced cohesive forces. Unbalanced कौन सा force? Cohesive force. Let me write like this, unbalanced cohesive force. And everybody knows from our previous classes, if the temperature is going to increase, then the bonds are going to break. The bonds are going to break with increase in temperature. So with increase in temperature, when the bonds are going to break na beta, then the surface tension is also going to decrease. Wonderful. So अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, ये था नॉर्मल टीचर्स का एक्सप्लेनेशन। आपके कॉलेजेस में टीचर्स आपको ऐसे पढ़ाते होंगे, बट लेट मी गिव यू नाउ द रियल फील ऑफ सरफेस टेंशन, द रियल विजुअलाइजेशन ऑफ सरफेस टेंशन। लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जो मेरे हाथ में कागज है, अबे आप तो सुन लो भाई, मान लो मेरे हाथ में ये जो कागज है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम लिक्विड सरफेस, ये कोई लिक्विड का सरफेस है, और मैंने इस कागज को यहां से खींच रहा हूं, इस कागज को यहां से खींच रहा हूं, तो इसका मतलब ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है।
आ रही है, आवाज आ रही होगी, मजा आ रहा होगा। सो देयरफॉर ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह है। अब आपके सर आपसे क्या कह रहे हैं? आपके सर आपसे कह रहे हैं कि अगर तुम लोग एक मॉलिक्यूल लोगे विच इज बिलो द सरफेस, पहले तो मैं जरा 2 सेकंड में रिवाइज करवा देता हूं जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है? 2 सेकंड में रिवाइज करवाता हूं। देखो, पहले तो आप एक मॉलिक्यूल लोगे विच इज बिलो द लिक्विड सरफेस। ये जो मॉलिक्यूल है विच इज बिलो द लिक्विड सरफेस, दिस मॉलिक्यूल विल बी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस फ्रॉम ऑल द साइड्स, 360-degree angle, equally distributed. So this molecule is under equilibrium. Now what you do is, let us take another molecule which is present on the surface. Let us take another molecule which is present on the surface. Okay, see my hand. So if this molecule is present on the surface, this molecule will be under the action of pulling forces. This molecule will be under the action of pulling forces in the downward direction. So due to this, ये जो मॉलिक्यूल आपको ऐसा नजर आ रहा है ये थोड़ा खुल जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल आपको ऐसा नजर आ रहा है ये थोड़ा सा खुल जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा अंग्रेजी भाषा में। अब ये अकेला मॉलिक्यूल इलोंगेटेड नहीं हो रहा है, ऐसे करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं इस लिक्विड के सतह पर जो कि क्या कर रहे हैं? इलोंगेटेड कंडीशन में है, पुलिंग में है या स्ट्रेचिंग में है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो करोड़ों मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के सतह पर हैं जो कि इलोंगेटेड कंडीशन में है, उन सारे करोड़ों मॉलिक्यूल्स का स्ट्रेचिंग भैया करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, उन करोड़ों मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहा है, उन सारे स्ट्रेचिंग फोर्सेस का स्ट्रेचिंग उन फोर्सेस का स्ट्रेचिंग फोर्स लगते समेशन होते जो एंड रिजल्टेंट फोर्स है। जैसे मान लो ये इस पे एक कागज पे कैसे करे जी, ये जो कागज है जी, इसके ऊपर स्ट्रेचिंग लगते जो एंड रिजल्टेंट पुल है, टोटल एंड रिजल्टेंट पुल जो है वो इस कागज की पेरीफेरी पे एक्ट करेगा, बच्चों। सो ये जो कागज है इस पे जो पुलिंग स्ट्रेचिंग लगते जो एंड रिजल्टेंट पुल ऐसे आएगा, सारे फोर्सेस का समेशन होते जो एंड रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आपकी वो जो इलास्टिक चादर है उसकी पेरीफेरी पे आएगा। यही रीजन है कि सरफेस टेंशन को एक लाइन फोर्स बोला जाता है। It is not an area force. It is a force which is acting over the periphery and not over the area. Excellent, बच्चों. And not over the area. Look here, everyone. So what I am basically trying. अच्छा, इसको ऐसे समझो, क्या आपने अपने कभी जीवन में चादर बिछाई है? क्या आपने कभी भी अपने जीवन में चादर बिछाई है क्या? बिल्कुल बिछाई होगी दोस्त, चादर बिल्कुल बिछाई होगी। तो चादर बिछाते वक्त एक तरफ से आप पकड़ते हो और एक तरफ से ऑफ कोर्स कोई पकड़ेगा, और क्या, एक तरफ से आप खींच रहे हो और दूसरी तरफ से ऑफ कोर्स कोई खींचेगा। तो जब एक तरफ से उसने खींचा और एक तरफ से इधर से खींचा, तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि चादर के जो बीच के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे मॉलिक्यूल स्ट्रेचिंग होते जो उस चादर पे जो एंड रिजल्टेंट पुल आएगा वो उस चादर को पकड़ने वाले के हाथ पे आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी चादर लेट अस से, अगर आपका पानी एक रेक्टेंगुलर कंटेनर में रखा है, तो जो सरफेस टेंशन फोर्सेस है ना सारे मॉलिक्यूल पे समेशन होते सरफेस टेंशन का जो रिजल्टेंट है ना वो उस रेक्टेंगुलर सरफेस के पेरीफेरी पे एक्ट करेगा। मान लो एक ग्लास में ना पानी रख रखा है, ठीक है। सो अगर एक ग्लास के अंदर पानी रख रखा है या फिर एक ट्यूब के अंदर, वो जो आपके केमिस्ट्री लैब में होती थी ना ब्यूरेट, अबे याद होगा, कुछ तो याद रखा करो यार, मुझे तो मजा आ रहा है, आपका नहीं पता भाई। जो आपके केमिस्ट्री लैब में वो ब्यूरेट हुआ करती थी, याद है तुम लोगों को? तो केमिस्ट्री लैब में वो जो ब्यूरेट है उसमें तुमने
डाल रखा है, केमिकल डाल रखा है या कुछ भी चीज डाल रखी है, तो क्या तुम्हें याद है कि एक मेनिस्कस जैसी चीज फॉर्म होती थी, एक इस तरह की चीज फॉर्म होती थी जिसे हम मेनिस्कस कहते हैं। कुछ ऐसा नजर आता था वो, ये देखो कैमरे पे, ये देखो ऐसा सा नजर आता था वो, यस बिल्कुल। तो अगर वो एक ऐसा सा नजर आता था एंड द शेप ऑफ द सरफेस इज लाइक दिस, तो ये एक चादर सी है जिसकी शेप ऐसी है, जिसका रिजल्टेंट ना इस चादर के पेरीफेरी पे एक्ट करेगा, जिसका रिजल्टेंट इस चादर के पेरीफेरी पे एक्ट करेगा। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड। चादर के पेरीफेरी पे एक्ट करेगा। Look here everyone. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसीलिए सरफेस टेंशन एक लाइन फोर्स है, एक एरिया फोर्स नहीं है। इट इज अ ब्लडी लाइन फोर्स, इट इज अ ब्लडी लाइन फोर्स। वेरी गुड। क्योंकि बेटा एरिया फोर्स अगर होता तो हम इसे सरफेस टेंशन ना कह के प्रेशर कह देते ना। एरिया फोर्स अगर होता तो हम इसे सरफेस टेंशन ना कह के क्या कहते, प्रेशर फोर्स कहते ना, बिकॉज प्रेशर इज समथिंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। अगली जरूरी बात, सर चलो थोड़ा बहुत तो सर आइडिया लग गया कि कैसे हो रहा है, लेकिन सर मैथमेटिकली कैसे होगा? यस, मैथ्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ये देख मेरी बात सुन मेरे लाल, ये मेरा लिक्विड का सरफेस है, ये मेरा लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर अगर मैं कोई लोड रखता हूं, ये मेरा लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। अगर अभी ये सरफेस ऐसे, ये मेरे हाथ में इस बोर्ड का वो पेन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं, लोड है ना, ये एक तरह का लोड हो गया, तो किसी लोड को इस इलोंगेटेड सरफेस के ऊपर मैं रखता हूं, तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि इस इलोंगेटेड सरफेस जो है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, वो इलोंगेटेड सरफेस थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अब ये इलोंगेटेड सरफेस जैसे ये बेंड हो जाएगा, तो देखो इट विल बी m इंटू जी ऑफ द मार्कर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस मार्कर का जो वजन है m इंटू जी, बल्कि m इंटू जी ना लिख के फ्लूइड मैकेनिक्स में कैसे लिखेंगे ज्यादातर टाइम, रो जी वी। क्या तुम्हें याद है? अबे सब पढ़ा चुका हूं, इधर देखो। So m into g is going to act in downward direction and surface tension force over this is going to, see my fingers, surface tension force is going to act like this and it is going to act like this. So surface tension force is going to act like this and act like this, but the weight of the marker is acting in downward direction. So the balancing force should be vertically upwards. So if this is the surface tension force, the cos component of surface tension, the cos component of surface tension force is going to be Fs cos theta, and that is going to balance the weight. That is going to balance the weight. Excellent बच्चों। देखो, it is something like this. So basically मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दोस्त, हमारे इस लिक्विड के सतह के ऊपर करोड़ों लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब उन करोड़ों लिक्विड के पार्टिकल्स पे अगर मैं ये लोड ऐसे करके रखता हूं, तो मेरे लोड रखने के कारण इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, जस्ट अ मिनट सुनो, मार्कर होगा, मार्कर बोर्ड, सफेद बोर्ड पे लिखने वाला मार्कर लेकर आओ जल्दी से। हाँ, कोई सा भी कलर का ले आओ, जल्दी ले आओ। एक मिनट, मार्कर मंगवा रहा हूं। मार्कर, अबे समझ में आना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जब तक मार्कर आ रहा है, जब तक तुम लोग ये समझ लो कि भाई सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा। सो सरफेस टेंशन विच इज सिग्मा is equal to force per unit length, is going to be force per unit length, where F is known as surface tension force. It is known as surface tension force. This is the most important thing now, because it is not a line force, it is an area force. So L is the length over which, it is the length over which
surface tension is acting. It is the length over which surface tension is acting, or in other words, very simply you can say it is the perimeter. It is the perimeter. अभी देखो, अब मैं समझाता हूं मैं क्या बोल रहा था. जैसे ये मेरा लोड है, ये देखो ना, ये कागज का ये जो है ये लोड है, तो ये कागज का शेप कुछ ऐसे हो जाएगा बिकॉज द लिक्विड सरफेस इज गोइंग टू बिकम समथिंग लाइक दिस. अब इस लिक्विड सरफेस पे, इस लोड पे सरफेस टेंशन फोर्स कैसे लग रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे लग रहा होगा. कुछ पल्ले पड़ रहा है, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा. ये देखो कैमरे के और करीब आ गया, अब नजर आ रहा है. सो ये जो काले रंग का है ये है मेरा लोड, ठीक है, और जो नीले रंग की है वो है सरफेस टेंशन फोर्स. सो सरफेस टेंशन फोर्सेस आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द लोड बट इन द प्लेन ऑफ द सरफेस, इन द प्लेन ऑफ द सरफेस. इसी चीज को मैं ऐसे करके दिखाना चाहूं तो ये देखो, ये देखो, मजा आ रहा है कि नहीं. तो अभी मैथमेटिकली कैसे बैलेंस हो रहा है, m into g in the downward direction, m into g in the downward direction of this load is balanced by this surface tension and this surface tension, but the resultant is going to act over the periphery here. So उसका cos component क्या स्टूडेंट्स है जी इन लोगों का. आप क्या टीचर क्या जान दे क्या जी, जान दे क्या जी, हम बताइए. वेरी गुड, वेरी गुड. बट दिस, ये जो चादर सी जो बिछी हुई है, अच्छा आपने कभी आप सर्कस वगैरह में गए हो या फिर ओलंपिक्स में आपने जिम्नास्टिक्स देखा हो, तो जिम्नास्टिक्स में वो एक चीज होती है जिसके ऊपर जिम्नास्ट कूदते हैं, ट्रेम्पोलिन. कभी देखा है? आजकल तो मॉल वगैरह के बाहर भी लगने लगा है बच्चों के लिए उछलने कूदने के लिए. एक ट्रेम्पोलिन रबड़ नुमा टाइप का सर्कुलर वो होता है, उसके ऊपर बच्चे ऐसे कूदते हैं, जिम्नास्ट ऐसे कूदते हैं, उन्हें बाउंस मिलता है. उससे तुम बहुत अच्छे से सरफेस टेंशन को विजुअलाइज कर पाओगे, उसे फील कर पाओगे. कैसे बेटा? देखो, जो भी आपका व्यक्ति है वो ऐसे करके कूदा ट्रेम्पोलिन के ऊपर कूदा, तो ट्रेम्पोलिन क्या करता है, उसको वापस से ऐसे बाउंस कर देता है. तो उसका लोड कैसे बियर हुआ, पेरीफेरी पे, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेम्पोलिन is the force is distributed over the periphery of the trampoline and उसकी वजह से उस बंदे को बाउंस मिलता है. इसलिए उस बंदे को बाउंस मिलता है. Oh my God, such a fantastic day. बिकॉज हमें हमारी कॉलेज लाइफ में बस सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन आज जीवन में पहली बार, अबे मुझे गारंटी है भाई 99.9% बच्चों को जीवन में पहली बार सरफेस टेंशन का मतलब समझ में आया है. पहली बार जीवन में सरफेस टेंशन का मतलब समझ में आया है. अब जब मतलब समझ में आ ही गया है तो यूनिट भी देख लो, काहे पछता रहे हो. इधर देखो, यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ. सो न्यूटन पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ सरफेस tension, is the SI unit of surface tension. Wonderful. Look here on the board, my dear students. ये हमारा सरफेस है. टीचर आपसे 10,000 बार बोल चुके हैं, केवल छोटे मोटे लोड्स को ही बियर करने की क्षमता रखता है. तो अगर कहीं कोई बड़ा लोड हो गया तो ये जो चादर बिछी हुई है ना, ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, ये ब्रेक हो जाएगा. ये इलास्टिक मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा और आप खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे भाई. कौनो आपको बचाने वाला नहीं है. तो गलती से भी मेरे लाल तू मत कूद जाइयो पानी में, कहीं कल को पहुंच जाए स्विमिंग पूल में, यो चिल कर रहा हूं मैं, एंड ऊपर से कूद गया, स्विमिंग आती नहीं है, और तू अपने आप को मक्खी या मच्छर समझ रहा है कि भाई सरफेस टेंशन ब्यूटीफुली मैं पानी पे लैंड करूंगा. तो बेटा तू लैंड नहीं करेगा, तू सीधा निपट जाएगा, खत्म. एडियाबैटिक डेथ, एडियाबैटिक डेथ. एक्सलेंट बच्चों, नाइस. सो सरफेस टेंशन is a line force, and mathematically I have told you how things are happening. चलो एक और, अच्छे बच्चे हो, I am enjoying with you guys.
आई एम एंजॉइंग विद यू गाइज, आई एम एंजॉइंग विद यू गाइज। तो ऐसा करो, मैं ना तुम्हें एक स्टैंडर्ड वैल्यू और बता देता हूं, तुम्हें ना फील आएगा, जबरदस्त फील आएगा। लेट मी टेल यू द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एयर वाटर इंटरफेस, सरफेस टेंशन ऑफ एयर वाटर इंटरफेस। नाउ सरफेस टेंशन ऑफ, ये बेटा कॉलेज की लैब में एक्सपेरिमेंट किया करते थे तुम लोग। अगर तुम्हारे कॉलेज में लैब थी तो ये एक बहुत बड़ा वो है, ठीक है। लेकिन अगर कॉलेज में लैब थी तो ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग किया करते थे कि पानी हवा का जो इंटरफेस है उसका सरफेस टेंशन कितना होता है। किसी को याद है कैसे करते थे एक्सपेरिमेंट कॉलेज में? हम लोग एक बीकर लिया करते थे, उसके अंदर ना एक छोटी सी ग्लास की ट्यूब को इंसर्ट करते थे। तो जब तुम छोटी सी ग्लास की ट्यूब को उसके अंदर इंसर्ट करोगे तो लिक्विड का लेवल उसके अंदर राइज करेगा, और जब लिक्विड का लेवल उसके अंदर राइज करेगा ना बच्चे, तो फिर उसे फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा, आज ही की क्लास में डिराइव करवाएंगे, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय डब्ल्यू डी, उससे इक्वेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। सो पानी हवा के इंटरफेस का सरफेस टेंशन अप्रोक्सीमेटली 0.736 न्यूटन पर मीटर होता है। ऐसे ही मैंने आपको, क्योंकि जनरली हमें हर जगह पानी हवा ही मिलता है, तो इसलिए मैंने उसकी वैल्यू आपको बता दी। अब सुनो, इस वैल्यू को जरा डिकोड करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पानी और हवा का जो इंटरफेस है ना, वो इतने न्यूटन का वजन बियर कर सकता है, इतने न्यूटन का वजन बियर कर सकता है, बट किसी एक पॉइंट पे नहीं, 1 मीटर के लेंथ पे इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। गजब। इसका मतलब ये है वजन। सो वजन होता है m इंटू जी। सो m इंटू जी इज 0.0736। तो यहां से बेटा मास कितना आ जाएगा? इसको g से डिवाइड किए, इसको g से डिवाइड करोगे, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दे रहा हूं, 7.5 ग्राम आएगा। करते रहना घर पे, ठीक है, लगभग 7.5। लो भाई, अब तो जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं सीखने के लिए। अब और क्या, निर्वाणा का प्राप्ति हो रहा है धीरे धीरे। टीचर ने यह भी बता दिया कि पानी का जो सरफेस है वो केवल और केवल 7.5 ग्राम का ही वजन बियर कर सकता है, वो भी किसी एक पॉइंट पे नहीं, 1 मीटर के लेंथ पे। किसी एक पॉइंट पे नहीं, 1 मीटर के लेंथ पे। एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा बैच, पूरा का पूरा बैच मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। अबे तुम जिंदा हो, मृत हो, मुझे मतलब नहीं है, मुर्दों में भी जान आ जानी चाहिए इस क्लास के बाद। और शीघ्र अतिशीघ्र मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको आइडिया लगा सरफेस टेंशन क्या है? क्या आप लोगों को आइडिया लगा कि सरफेस टेंशन क्या है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। वेरी गुड, very good, excellent students of India. Tell me in the comment box whether you have understood what surface tension is or not. Very good. अब ये देखो, देखिए कुछ लोग चीजों को समझने की बजाय वो लोग ना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता रहा हूं, तुम ना जंप मत करो, स्किप मत करो सब्जेक्ट में। जो चीज आगे पढ़ाएंगे, मैं बार बार बच्चों आपके लिए दोहरा रहा हूं, धैर्य स्टूडेंट का सबसे बड़ा गहना है। सदैव पहन के निकला करें। धैर्य स्टूडेंट का सबसे बड़ा गहना है, सदैव पहन के निकला करें। वंडरफुल। चलो फिर इसी बात पे नोट्स कंप्लीट कर लो अपने पहले तो। नोट्स कंप्लीट कर लो अपने। पेज नंबर 29 पे आ जाएं। नोट्स कंप्लीट कर लीजिए अपने। बढ़िया। अरे दीपक कुमार साहू जी बताएंगे अभी। क्यों आप, मतलब इतनी क्या चुल है दोस्त? जब टीचर कह रहे हैं धैर्य रखो भाई,
कॉस कंपोनेंट कैसे आया सर, कॉस कंपोनेंट, अरे भाई धैर्य रख, अगर तेरे को पहली बार में नहीं समझ में आया कोई टॉपिक खत्म थोड़ी ना हो गया, अभी तो पूरा का पूरा टॉपिक पता है, पूरा एनालिसिस बचा है, आप क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो दीपक? वेरी गुड, नाइस। चलिए नोट्स कंप्लीट कर लीजिए लगे हाथों। पेज नंबर 29 पे आ जाएं सभी लोग, पेज नंबर 29 पे आ जाएं। पेज नंबर 29 पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। अब जरा ध्यान दो बेटा, पेज नंबर 29 पे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, लेकिन डायग्राम इनकम्प्लीट है, तो डायग्राम को जरा कंप्लीट कर लो सबसे पहले। तो जल्दी करो, जल्दी जल्दी, लिखने का काम तेज, लिखने का काम तेज। डन बेटा, ये डायग्राम कंप्लीट कर लो। ए के साइड में मॉलिक्यूल इन बल्क, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, कोहेसिव फोर्सेस, इस तरह का चीज लिख लो। और यहां पर जो है अनबैलेंस कंडीशन, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, ऐसे करके लिख लीजिए। ये अच्छा, ये पॉइंट मैं अभी लिखवाऊंगा आपको, ये पॉइंट मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। वंडरफुल, आई होप दिस इज कंप्लीटेड, डायग्राम इज कंप्लीटेड। फिर देखो बाकी सारे पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, वो आप घर पे पढ़ लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लिखे। पेज नंबर 29 के बॉटम पे देखो जगह खाली है, जो पेज नंबर 29 के बॉटम पे जगह खाली है वहां पर लिखिए, वहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, द मेन रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, the main reason of surface tension is unbalanced cohesive forces. The main reason of surface tension is unbalanced cohesive forces. Is unbalanced cohesive forces. Is unbalanced cohesive forces. Write down next point. Write down next point. With increase in temperature, surface tension decreases. With increase in temperature, surface tension decreases. Write down next point. सरफेस टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन क्यों घटता है? क्योंकि बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं तो सरफेस टेंशन इज गोइंग टू डिक्रीज। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एन आइडियल फ्लूइड surface tension is zero. For an ideal fluid, surface tension is zero. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तुम्हें पता है सरफेस आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, नॉन विस्कस होते हैं। तो आइडियल फ्लूइड्स अगर नॉन विस्कस हैं तो भाई उनमें बॉन्ड्स नहीं है ना, बॉन्ड्स नहीं है तो सरफेस टेंशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से आइडियल फ्लूइड की क्या क्या कंडीशन हो गई, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड जीरो सरफेस टेंशन। ये चीज शायद तुम्हारे प्रिंट आउट में कहीं पर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है तुम्हारे प्रिंट आउट में कहीं पर, देखना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, रेड पेन से लिखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट लिखिए, रेड पेन से लिखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन, सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स, सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स with forces acting
with forces acting perpendicular to the line, with forces acting perpendicular to the line, but in the plane of the surface. Everybody knows, जो भी आपका लोड रहेगा उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगी सरफेस टेंशन फोर्स, बट इन द प्लेन ऑफ द सरफेस. मैंने वो पेन मार्कर से आपको दिखाया था, इन द प्लेन ऑफ द सरफेस. मैं एक और बार रिपीट कर देता हूं. सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स, surface tension is a line force with forces acting perpendicular to the line, but in the plane of the surface, write down next point. बेटा अगर जगह नहीं बची तो अगले पेज पे देख लो, अगले पेज पे जगह खाली है, ठीक है. अगले पेज पे देख लो, पेज नंबर 30 पे. राइट डाउन मैथमेटिकली, पेज नंबर 30 के टॉप पे भी जगह खाली है, वहां लिख सकते हो. कुछ बच्चे बता रहे हैं कि स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया था कुछ देर के लिए. कुछ बच्चे बता रहे हैं कि स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया था कुछ देर के लिए. एक बारी जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, क्या अब मैं ऑडिबल विजिबल हूं? क्या अभी सब ठीक है? एक बारी कमेंट बॉक्स, पॉइंट में रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी जरा एक बारी के लिए बता दो, क्या मैं अब ऑडिबल विजिबल हूं आप लोगों को? यस, अभी सब ठीक है. वो थोड़ी देर के लिए कुछ बीच में हो गया होगा लैग, कोई बात नहीं, बता देना. अगर अभी कभी भी ऐसा हो तो बता देना, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है. चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पिछला पॉइंट रिपीट कर देता हूं. सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स, सरफेस टेंशन इज अ लाइन फोर्स with forces acting perpendicular to the line, but in the plane of the surface, perpendicular to the line but in the plane of the surface. चलो पेज नंबर 30 के टॉप पे भी जगह खाली है, वहां पर भी लिख सकते हो, वहां लिख लो. मैथमेटिकली surface tension is defined as, force per unit length, and its SI unit is Newton per meter. वेरी गुड. क्या उसके नीचे आप लोग देख पा रहे हो फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है? अच्छा, उसके नीचे देखो एक और चीज है, एनालॉजी टाइप की. अब ये एनालॉजी का क्या मतलब है, ये देखो. एनालॉजी कुछ नहीं, एनालॉजी का मतलब होता है समझने का ऑल्टरनेट तरीका या समझाने का ऑल्टरनेट तरीका. सो बेसिकली आप लोग 12th क्लास के फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हो. जैसे मान लो ये कोई एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के बीचों बीच आपने 10 kg का एक लोड लगा दिया. जस्ट एक समझने का तरीका. तो आपके 10 kg के लोड लगाने के कारण ये स्ट्रिंग ऐसे बेंड हो जाएगा. अरे बाबा, आपके लोड लगाने के कारण ये स्ट्रिंग ऐसे बेंड हो जाएगा. एंड जब ये स्ट्रिंग ऐसे बेंड हो जाएगा, सो देयरफॉर एवरीबॉडी नोज कि भाई यहां पर ये अपना 10 kg का ही लोड है. सो
ये 10 kg के लोड को स्ट्रिंग में किसने बैलेंस किया होगा? टेंशन विल गेट डेवलप्ड इनटू द स्ट्रिंग, टेंशन विल गेट डेवलप्ड इनटू द स्ट्रिंग। सो देयरफॉर ये जो 10 kg का लोड है इसको किसने बैलेंस किया होगा? इस टेंशन के कॉस्ट कंपोनेंट ने, टेंशन के कॉस्ट कंपोनेंट में, क्योंकि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस टेंशन के कॉस्ट कंपोनेंट ने और यहां के भी कॉस्ट कंपोनेंट। सो बेसिकली 2t cos थीटा, 2t cos theta. So 2t cos theta has balanced out the weight. 2t cos theta has balanced out the weight. Wonderful. 2t cos theta, 2t cos theta will balance out the weight. Very good. और अभी थोड़ी देर पहले आपको एक और चीज पढ़ाई थी। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई लोड है, मान लो ये कोई लोड है, ठीक है, लेकिन आपके लोड जो है, लोड पे जो सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर टू द लोड लगेंगी बट इन द प्लेन ऑफ द सरफेस, वो परपेंडिकुलर टू द लोड लगेंगी बट इन द प्लेन ऑफ द सरफेस। सो देयरफॉर ये अपना लोड है और ये जो है ये क्या है? सरफेस टेंशन फोर्सेस है, सरफेस टेंशन फोर्सेस है, सरफेस टेंशन फोर्सेस है। वंडरफुल। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अल्टीमेटली सारी चीजें मैकेनिक्स ना, तो मैकेनिक्स में वही है, कोई चीज ऐसे थी उस ऐसे बेंड हुई, 10 kg इज बैलेंस बाय द 2t cos थीटा, इज बैलेंस बाय द 2t cos थीटा। सो बेसिकली आपके लोड रखने के कारण टेंशन इज डेवलप्ड इन द सरफेस इलास्टिक मेम्ब्रेन, जिसका कॉस्ट कंपोनेंट इज बैलेंसिंग द वेट। चलो नोट्स कंप्लीट कर लो। तो क्या आपको अपने नोट्स में, ये देखो, क्या आपको अपने नोट्स में ये वाला डायग्राम नजर आ रहा है? यस। तो इस वाले डायग्राम पे लिख लो, ये लोड लिख लो, सरफेस टेंशन फोर्सेस, ऐसे करके कंप्लीट कर लो। और जहां साइड में एनालॉजी लिख रखा है ना, तो एनालॉजी में ये बना लो, ये बना लो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। बी एक्टिव, बी एक्टिव। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास में अव्वल दर्जे का आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, अव्वल दर्जे का कंसंट्रेशन होना चाहिए। डन बेटा, कंप्लीटेड दिस, वेरी गुड। ये तो आपने लिख ही लिया है, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। अच्छा, एक और पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूं, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 ऑफ द प्रिंट आउट, जो बॉटम ऑफ द पेज है वो भी खाली है, ठीक है। पेज नंबर 30 पे एक और पॉइंट लिखो, राइट डाउन, रेड पेन से लिखना, इंटरव्यूज में पूछा जा चुका है। सरफेस टेंशन इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी। अरे, सरफेस टेंशन इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी, surface tension is a binary property and its magnitude depends on, surface tension is a binary property and its magnitude depends on the nature of two fluids forming the interface। हिमांशु तिवारी, क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे सरफेस टेंशन 0 होता है। एक और पॉइंट लिख लीजिए, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट इन योर रजिस्टर, राइट डाउन वन मोर पॉइंट। एट क्रिटिकल point surface tension is 0। It's not my birthday today, don't worry। भाई कुछ समझाना है, इसलिए गुब्बारा फुला रहा हूं, मेरा जन्मदिन नहीं है आज।
एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस टेंशन इज 0। अच्छा मुझे ये बताओ सरफेस टेंशन कब फॉर्म होता है? बताओ सरफेस टेंशन कब फॉर्म होता है? सरफेस टेंशन तब फॉर्म होगा जब इंटरफेस फॉर्म होगा। लेकिन आप लोग जानते हो वो जो थर्मोडायनेमिक्स में आप क्रिटिकल पॉइंट पढ़ते हो जो कि टॉप ऑफ द डोम होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे तो पानी सीधा फ्लैश ऑफ हो जाता है ना स्टीम में, तो कोई इंटरफेस फॉर्म ही नहीं होता, क्योंकि इंटरफेस फॉर्म होने के लिए आपको चाहिए ना लिक्विड एयर का इंटरफेस चाहिए, बट दैट इज नॉट फॉर्म। ओके, सो देयरफॉर एट क्रिटिकल पॉइंट सरफेस टेंशन इज 0। अच्छा जो पेज नंबर 30 है उस पर ये भी नोट कर लो भाई, ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, इंटरव्यू में कहीं पर काम आ जाएगा। सो दिस इज फॉर इंटरव्यूज। ये भी नोट कर लीजिए, इंटरव्यूज में कहीं पर काम आ जाएगा। ये भी नोट कर लीजिए, इंटरव्यूज में काम आ जाएगा भौकाली दिखाने के लिए। अरे इट्स नॉट माय बर्थडे टुडे भाई, हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं लोग लोग हैप्पी बर्थडे लिखना शुरू हो गए हैं कमेंट बॉक्स में। भाई मेरा जन्मदिन नहीं है, तुम्हें अभी कुछ समझाना है उसके लिए मैंने बलून करा है, ठीक है? चलो ये लिख लिया। अब तुम्हारे पेज नंबर 30 पे 2 और पॉइंट्स लिखे हैं, वो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। जरा तेज आवाज में अपने घरों में पढ़ो क्या लिख रखा है पेज नंबर 30 पे, तेज आवाज में, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि लड़का एफएम पढ़ रहा है। लिख, क्या पॉइंट है बेटा? डिटर्जेंट्स आर यूज, डिटर्जेंट्स बेटा वॉशिंग पाउडर निरमा, सो डिटर्जेंट्स आर यूज्ड while washing clothes to reduce surface tension, to reduce surface tension। देखिए so that the dirt particles can come out। सो ये जो आप लोग डिटर्जेंट्स यूज करते हो ना, इसका बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो ये है कि ये सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। अभी कैसे करता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका कोई कपड़ा है, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई कपड़ा है, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड भाई, जस्ट I don't know what has happened to that, some kind of hanging is happening, just wait a moment। कोई बात नहीं बेटा, आज पहली क्लास है ना, इधर से some hanging of the board is happening। आज जी क्या करें जी इसका, just a moment dear, let me open one more file, let me open a new file, don't worry। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, डिजिटल बोर्ड थोड़ा हैंग हो गया है, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी यू सी, टेक्नोलॉजी यू सी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हमें विश्वास नहीं छोड़ना है, हो जाएगा। अरे some problem has happened।
बेटा सम प्रॉब्लम हैज हैपेंड विद द डिजिटल बोर्ड। मैं 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द डिजिटल बोर्ड। कुछ प्रॉब्लम हो गई है लग रहा है, आई थिंक मेरे को इसको रिबूट करना पड़ेगा। इसको ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं, है ना। दिस ऑलवेज वर्क्स, दिस ऑलवेज वर्क्स, पिक्चरों में ही नहीं ऐसे भी इट वर्क्स। तो मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूं, 15 मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। तो हम लोग अभी बज रहे हैं 10:25, हम लोग 10:40 पे वापस मिल रहे हैं, 10:40 पे हम लोग वापस मिल रहे हैं। दस 40 पे हम लोग वापस मिल रहे हैं। शिव प्रकाश, इट इज नॉट लोकेशन स्पेसिफिक। शिव प्रकाश, इट इज नॉट लोकेशन स्पेसिफिक डियर। लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है, पूरे के पूरे सरफेस पे होता है, सरफेस टेंशन प्रेजेंट, ठीक है।